So once again, good afternoon, students. For this video lecture, yesterday I think we started with the method of joints का एक problem solve किया था, correct है? Even I think we discussed about the procedure, how you are going to analyze the analysis of truss, and by two methods था उसमें one method is method of joints. So in this particular I think even we solved one numerical also, correct है? Procedure पहले हमने बताया और उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था. सो इन टुडेस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी विल सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल. तो थोड़ा देन आई थॉट थोड़ा आराम से करते हैं, ठीक है? इवन इफ पॉसिबल देर इज वी विल सॉल्व ओनली वन न्यूमेरिकल, बट थोड़ा आराम से करते हैं, ठीक है? And I think yesterday principal sir का meeting हुआ था, and all those information whatever the guidelines given code for university को दिखाने या DTE को दिखाने, वो सब information आप लोगों को आई थिंक काटे सर भी एक वीडियो बना के आपको इन मैसेज पास किया है. सो प्लीज़ डू योर असाइनमेंट्स, दैट इज़ असाइनमेंट नंबर 3 and 4, करेक्ट है? तो मैंने दोनों असाइनमेंट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया था, ठीक है? सो दैट इज़ द यूनिट नंबर 3 इक्विलिब्रियम का एंड यूनिट नंबर 4 एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स का. ये दोनों के ऊपर जो भी असाइनमेंट है वो आप अप्रैल 28 आई थिंक जो काटे सर ने इन्फॉर्म किया है उस डेट के अंदर आप हमको सबमिट करो, ठीक है? थ्रू मेल. एंड असाइनमेंट करने के लिए आप कोई भी शीट्स पेजेस यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कॉलेज का जो प्रोवाइड करते हैं उसी पे करना है. बट इतना याद रखो, हर एक शीट पे आपका रोल नंबर और आपका नाम विथ सिग्नेचर भी आप लिखो करके उसका PDF कैम स्कैनर में PDF कन्वर्ट करके देन यू मेल दैट PDF फाइल टू द रेस्पेक्टिव टीचर्स के लिए भेज सकते हो, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज. तो मेरा ईमेल आईडी मैं आपको पास करता हूँ, नया ईमेल आईडी जनरेट करके मैं आपको 1-2 दिन में दे देता हूँ. तो यू कैन सेंड इट टू दैट पर्टिकुलर ईमेल आईडी. बट ईमेल लिखते समय जो सब्जेक्ट रहता है उस उधर आप लोग क्या करना है, आपका रोल नंबर लिखना है. जैसे कि रोल नंबर आपका ये डिवीज़न है ना, रोल नंबर ये 01 और असाइनमेंट नंबर 3 ऐसा लिखना है. तो सेम प्रोसीजर बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, या पर्टिकुलर फैकल्टी जो बोलते हैं उसको आप वो गाइडलाइंस आप फॉलो करो, ठीक है? और चलो अभी हम क्या करते हैं, यूनिट नंबर 4 का दैट इज़ एनालिसिस ऑफ ट्रस हम न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं. सी इन दिस पर्टिकुलर एनालिसिस ऑफ ट्रस yesterday I told you analysis of truss can be done by two different methods. The first method is method of joints and second method is method of section. So we started with the method of joints, and even we discussed the procedure and we solved one numerical जो अभी मैंने starting of this particular video बताया था. So today we'll solve one more numerical, ठीक है? So you can see the second numerical, that is find out the forces in all the members of the truss. So this is the second problem. He has given one truss and you need to find the forces in all the members of the particular truss. So that means what he is asking is, he is given this particular diagram, correct है? ट्रस दिया है, उसमें he is asking, this is you can see there are different members are there. There is this one member, ये एक member है, ये I think this member is not there, sorry, ठीक है? Then this is the one member, this is one member, this is one member, this is one member. So like that there are different members are there. So what you have to do is you need to find the forces in these members, that is member A to C, member A to E, member C to E, member E to D, member D to B, member E to B. So ये सब members में you need to give the कौन क्या force है बताना है, whether the force is magnitude कितना है और whether compression है या tension है वो बताना पड़ता है, ठीक है? ओके, एक सेकेंड, ठीक है? सो you know the procedure. Once again I will just revise the procedure. First step में आपको क्या करना है, you need to take the entire truss, ठीक है, and apply the conditions of equilibrium, that is summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0 and summation of moment is equal to 0, because when you consider entire truss it becomes more coplanar non-concurrent forces. So you have three equilibrium conditions.
ठीक है. एंड आफ्टर अप्लाइंग एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, फाइंड आउट द रिएक्शंस एट ए एंड बी. All the reaction forces you will get. ठीक है. This is the first step. The second step is, after that one what you have to do is you need to check for any special conditions. मिलता है क्या चेक करना है. मतलब जीरो फोर्स मेंबर या दिस मेंबर इज इक्वल टू दिस मेंबर, दिस मेंबर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस मेंबर मैग्नीट्यूड. ऐसा कुछ स्पेशल कंडीशन जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था वो कुछ अप्लाई होता है क्या या अवेलेबल है क्या चेक करो. अगर है तो लिख के रख दो, सो दैट इट विल रिड्यूस यूर नंबर ऑफ स्टेप्स या जो प्रॉब्लम लेंथी रहता है उसको कम करता है. ठीक है. डन. द नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज व्हाट यू हैव टू डू इज देन यू स्टार्ट टेकिंग द इंडिविजुअल जॉइंट्स. हर एक जॉइंट लेने का एंड यू हैव टू apply the conditions of equilibrium, but you have to be careful while taking the joints. You know, yesterday as we discussed, the maximum number of unknowns should be two forces. ठीक है. टू अननोन्स मैक्सिमम रहना चाहिए. समझो आपने जॉइंट समझो अगर आपने जॉइंट ए लिया तो इधर इन सपोर्ट था, ये फोर्स है और ये फोर्स मिल गया था, इधर एक फोर्स है इधर एक फोर्स है, तो दोनों अननोन है, तो यू कैन टेक ये. ठीक है. अगर आपने गलती से क्या बोल सकते हैं कि सी जॉइंट ले लिया. ठीक है. तो सी जॉइंट पे कैसा होता है, दिस इज़ वन, ये दोनों अननोन है एंड 18 किलो न्यूटन एक फोर्स है. तो वंस अगेन यू कैन टेक डायरेक्टली 18 किलो न्यूटन ऑल्सो, सॉरी जॉइंट सी ऑल्सो. ठीक है. समझो आपने जॉइंट ई फर्स्ट ले लिया, सो देर आर डिफरेंट फोर्सेस आर देयर, जैसे कि ये एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है और इधर एक फोर्स है और 3-on-5 फोर्स है. ठीक है. और टोटली 5 फोर्सेस आर देयर, उसमें 4 फोर्सेस अननोन है, तो सिर्फ एक ही नोन है, दैट इज़ दिस वन. सो you have to be careful while taking the joints. So once you consider the joints, you need to check. आपको पता है अगर आपने इंडिविजुअल joints लिया, ठीक है, सो समझो ये joint लिया तो all the forces will be like this. So that means it becomes coplanar concurrent forces. Correct है. So then what you have to do is you have two equilibrium equations, that is summation f x is equal to 0 and summation f y is equal to 0. So what you have to do is you apply summation of x and fy, you find out the unknown forces. Then once it has happened, second दूसरे joint को जाओ, once again you apply summation of x, summation of y, find the unknowns. Then you go to another joint, you go to another, same procedure आप follow करो. So similarly like this you need to find out all the unknown forces. समझ में आया. So this is called as method of joints. सो अभी लास्ट क्लास में मैंने प्रोसीजर प्रॉपर से एक्सप्लेन किया है, इस बार भी स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ. अभी से जो आगे प्रॉब्लम जाने वाला है उसमें मैं ये सब बताऊँगा नहीं कि पहले ये लेने का, ये क्यों लेने का, इधर एफ एक्स एफ वाई क्यों, उसमें एफ एक्स एफ वाई मोमेंट क्यों, वो सब मैं नहीं करूँगा. ठीक है. क्योंकि इट टेक्स मोर टाइम. सो बेसिक आपको फिर से समझा दिया. चलो विल स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. ओके. once again, okay, there is a force FCD. तो आप इतना याद रखो, इधर एक फोर्स है. ठीक है. चलेगा, देखेंगे. ओके. फर्स्ट you have to draw the FBD of the entire truss. So FBD बोलते ही you need to remove the what we can say supports and you show the support reactions. So you can see this one is hinge support, that means you will be having two reactions, that is vertical reaction at A and horizontal reaction at A. Then this is roller support, that means only one reaction force, that is vertical reaction at B. So then there is a 31.5 kilonewton, udhar same rakha. This is 27 kilonewton, same rakha. This is 18 kilonewton, same rakha. Then they had given the 60 degrees, 60 degrees, 60 degrees, same, sub same rakha. ठीक है. So you draw the FBD. Done. So next, once you took the entire truss, you need to apply the summation fx, fy and moment. So normally I'll start with the moment. So you know moment about A मैं ले रहा हूँ. Why I'm taking it moment at A is because I need to make maximum number of forces 0. That is unknown forces 0 करना है. H A and V अगर moment about ये लिया तो what happens is एच ए एंड वी ए ज़ीरो हो जाता है. सो देर इज़ ओनली वन अननोन बचेगा, दैट इज़ वी बी, और वो मिल जाएगा. सो यू कैन सी हियर में वी बी मिल गया.
चलो, I'll apply the moment. So now I'm not going to explain how to take moment. You know moment is equal to force into perpendicular distance. ठीक है? Okay, so you know this is my moment center, red color वाला. Otherwise I'll change the color. This is moment center. ठीक है? So now, okay, moment about center. So HA गया, VA गया. Next I will take 18 kilonewton. This one, this force 18 kilonewton, correct है? So that 18 kilonewton force into perpendicular distance. So that means ये बीच में ऐसा कट हो रहा है, सॉरी, ऐसा. सो दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, वो कितना रहेगा? सो दैट विल बी 1.2 मीटर, बिकॉज ये वैल्यूज दिया है 2.5 मीटर. तो ये सेंटर पर ऐसा कट हो रहा है, तो दिस इज़ 1.2 मीटर. सो ओके, सो दिस फोर्स इज एक्टिंग with respect to A is clockwise, that is positive. So you can see here 18 into 1.2. ठीक है. So next force, okay, I will now डायरेक्ट करता हूँ. ठीक है. So next is 27 point ये वाला. ठीक है. So once again this force is rotating like this clockwise. So perpendicular distance is from here to here. So that is 2.4 and 1.2. So that is 3.6. So 27 into 3.6 clockwise है. Next ये हो गया. Next I'll take one more now, that is 31.5 ये वाला. So this is also rotating clockwise direction and perpendicular distance is 2.4 meter. So you can see here 31.5 into 2.4 positive में. ठीक है. Next I'll take next one is VB. So that is ऐसा है VB. So this force is acting anti-clockwise with respect to point A, and perpendicular distance is 2.4 and 2.4, that is 4.8. Anti-clockwise है minus, that is minus VB into 4.8 is equal to 0. ठीक है. So now you do the calculations. The only unknown in this particular equation is VB, and you will get that VB, that is 40.5 kilonewton. Positive आया, that means upwards. So whatever the direction you have taken here, that is correct. I think in the previous class I told, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आया तो जो आपने डायरेक्शन लिया है वो गलत है, उसका अपोजिट लेना है. डन. चलो. So then summation fx is equal to 0. That means all the x components should be equal to 0. So in this particular diagram x components कौन सा है वो देखते हैं. पहला है HA, correct है. Is there any other horizontal force? No. So that's why HA is equal to 0. Next we will go for summation fy is equal to 0. That means all the y components should be equal to 0. So in this particular diagram all the y components check करना है. करेक्ट है. कौन सा है? प्लस VA minus 31.5 plus VB minus 27 minus 18. So you can see plus VA plus VB minus 18 minus 27 minus 31.5 is equal to 0. तो इसमें आपको VB पता है, करेक्ट है. देर इज़ ओनली वन अननोन, दैट इज़ VA आपको मिल जाएगा. सो कितना आया? दैट इज़ 36 किलोन्यूटन मिला. वो भी पॉजिटिव मिला है. दैट मीन्स वॉट एवर द डायरेक्शन वी अज्यूम्ड फॉर VA, दैट इज़ करेक्ट. डन. ओके. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट आफ्टर दैट वन विल ट्राई टू सी एनी स्पेशल कंडीशंस मिलता है क्या. सो ऑल दो स्पेशल कंडीशन आपको पता रहना चाहिए. ठीक है. So in this particular problem there are no any special condition, I think so. नहीं है, इधर भी नहीं. ठीक है. we'll start solving the numerical. ठीक है. So now what we are going to do is we are going to consider different joints. ठीक है. पहले लेते हैं एक joint A. So that is joint A is this one. Sorry यार. ठीक है. joint A is this one. So now you can see here this is joint A. ठीक है. So you can see here there is HA. I had shown here HA which is 0 kilonewton. This is VA.
सो विच इज़ 36 किलो न्यूटन आपने फाइंड आउट किया था इधर, ठीक है. देन देर आर टू फोर्सेस आर गोइंग लाइक दिस, सो आई हैड शोन द टू फोर्सेस लाइक दिस. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू टेक इधर कंप्रेशन या टेंशन में रहता है, बट आप हमेशा अज्यूम करो टेंशन में रहेगा. सो टेंशन बोलते ही द एरो मार्क शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो मैंने ऐसे दिखाया. बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो वो भी मैंने दिखा दिया, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी हियर आई रिटर्न दैट पर्टिकुलर डायग्राम हियर. नाउ वंस यू अप्लाई द कंसिडर जॉइंट ए ले लिया, तो सिंस इट इज कोप्लानर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, you will have two equilibrium conditions, that is summation fx is equal to 0 and summation fy is equal to 0. so you apply the दोनों इक्वेशन, एनी इक्वेशन fy पहले डाल सकते हो fx, ठीक है. दो इक्वेशन में दो अननोन मिल जाएगा. चलो फर्स्ट fy इज इक्वल टू 0 लगाया, सो दैट मीन्स ऑल द y कॉम्पोनेंट शुड बी इक्वल टू 0. तो कौन सा है प्लस 36 किलो न्यूटन जो ऊपर जा रहा है. देन दिस कॉम्पोनेंट का एक x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट रहेगा क्योंकि वो इंक्लाइंड है, तो x कॉम्पोनेंट रहेगा एफ ए सी कॉस 60 बिकॉज 60 डिग्री इज मेकिंग एंगल विथ हॉरिजॉन्टल. एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट रहेगा एफ ए सी साइन 60. सो यू कैन सी एफ ए सी साइन 60 ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस रहेगा, और 36 किलो न्यूटन भी ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस 36 रहेगा. द ओनली अननोन इन दिस इक्वेशन इज एफ ए सी, दैट विल बी 41.5 माइनस 41.5 किलो न्यूटन, ठीक है. आपको एफ ए सी मिल गया. Now second is you apply summation fx is equal to 0. All the x component should be equal to 0. That is first इसका x component क्या रहेगा एफ ए सी कॉस 60 वो लिख दिया मैंने. नेक्स्ट वन इज एफ ए ई, दैट इज़ राइट साइड जा रहा है तो प्लस लिख दिया. प्लस ये एच ए है बट वो 0 है तो उसको मैंने लिखा नहीं. सो इसमें एक ही अननोन है दैट इज़ एफ ए ई, बिकॉज एफ ए सी का वैल्यू आपके पास था. यू सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू and you find out the unknown value, that is FAE is 20.75 kilonewton. Done. Next ऐसा आपने ये दो फोर्स फाइंड आउट कर दिया. सो दैट मीन्स आपने कौन सा फोर्स फाइंड आउट किया, ये दो फोर्स फाइंड आउट कर दिया, ठीक है. तो ये दोनों तो पहले ही फाइंड आउट किया था, अभी ये दोनों मिल गया. अभी आई विल टेक दूसरा जॉइंट. समझो मैंने ये जॉइंट लेता हूँ अभी, तो ये जॉइंट में कैसा है ऑलरेडी ये दो फोर्स पता है, तो बचा हुआ ये और ये दो अननोन मैक्सिमम, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप यू गॉट टू नो द प्रोसीजर. एक एक जॉइंट लेते रहने का, अननोन फोर्सेस ज्वाइन करने फाइंड आउट करने का. सिर्फ इतना ध्यान पे रखने का जो भी जॉइंट लेते हो उधर मैक्सिमम दो अननोन रहना चाहिए फोर्सेस, ठीक है. चलो सो नेक्स्ट आई विल गोइंग टू टेक जॉइंट सी, ठीक है. नाउ आई एम नॉट गोइंग ऊपर जाके इधर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है. इधर सी ए ऐसा बार बार नहीं करूँगा, ठीक है. तो सी जॉइंट पे, तो सी जॉइंट पे ये वाला सी जॉइंट अगर आपने देखा ना, ठीक है. सी जॉइंट पे अगर आपने देखा ना, सो देर इज़ 18 किलो न्यूटन ऊपर से एक्ट हो रहा है, ठीक है. और देर इज़ एफ ए सी और एफ सी ए फोर्स भी आपने फाइंड आउट करके रखा है. एंड देर इज़ एफ सी ई जो फाइंड आउट करना है और एफ सी डी जो फाइंड आउट करना है. इसमें ये नोन है और ये नोन है, तो दो अननोन रहेगा, ठीक है. सो चलो अभी क्या करते हैं, यू अप्लाई द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है. सो दैट इज समेशन एफ आई इज इक्वल टू 0, ऑल द वाई कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज -18. देन इसका माइनस एफ सी ए साइन 60 एंड इसका माइनस एफ सी ई साइन 60. यू कैन सी इधर माइनस एफ सी ए साइन 60 माइनस एफ सी ई साइन 60, ठीक है. यू नो दिस थिंग, माइनस क्यों आया, साइन क्यों लिया, चैप्टर 1 का है, ठीक है. देर इज़ नो नथिंग न्यू इन दिस वन, टोटली इट इज़ बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स विच वी स्टडीड इन द फर्स्ट यूनिट, ठीक है. ऑलरेडी आपने इनसेम भी लिखा है इसके ऊपर. then you know there is only one unknown, that is FCE. You find out that FCE, that is 20.78 kilonewton. Next you apply summation fx is equal to 0, that is FCD और इसका FCE cos 60 प्लस में इसका माइनस FCA cos 60. आप देख सकते हो FCE cos 60 माइनस FCA cos 60 एंड FCD. तो वंस अगेन देर इज़ ओनली वन अननोन, दैट इज़ FCD. उसका वैल्यू मिल जाएगा -31.14
किलो न्यूटन। जो भी वैल्यूज आता है लिख के रखो उधर, so that we can tabulate in the end of the problem. Next we'll go for consider joint D. so मतलब एक अभी एक सेकेंड, जब आपने जॉइंट ये लिया, करेक्ट है, आपने ये फोर्स फाइंड आउट किया और ये फोर्स फाइंड आउट किया था, करेक्ट है। जब आपने जॉइंट सी लिया तो आपको तो ये पता था, तो ये भी पता था, तो ये और ये फाइंड आउट किया, करेक्ट है। अब आप दूसरा जॉइंट लो, कोई भी लो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अगर ये आपने ये लिया तो आपके पास ये पता है, तो ये और ये अननोन है, तो ये भी ये पता है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हो। बाद में ये लेके या ये लेके अननोन फोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हो, और दो जॉइंट आपको लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर जॉइंट डी, सो दैट मीन्स इज टेकिंग दिस डी, ये वाला ले रहा है जॉइंट, ठीक है। तो इसमें ये और ये है, इसमें ये पता है आपको, ये पता है, ये दोनों अननोन है, डन। नेक्स्ट कंसिडर जॉइंट डी, तो इसमें दिस इज़ योर जॉइंट सी ले रहा हूँ, तो उसमें 27 किलो न्यूटन है, एफ डी बी सब ऊपर से अभी जस्ट चेक करके आया। यू अप्लाई समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो व्हेन यू अप्लाई समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज एफ डी सी, दैट इज उसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज -31.14 किलो न्यूटन, और इधर लेफ्ट साइड जा रहा है, उसका वैल्यू ही -31 है, तो ये भी लेफ्ट साइड जा रहा है, इसलिए -31.14, माइनस ऑफ -31.14, ठीक है। बाद में इसका एफ डी बी cos 60, ठीक है, ये वाला, और इसका माइनस एफ डी ई cos 60, ये वाला, ठीक है। देन यू नो द ओनली अननोन, सॉरी इसमें दो अननोन है, एफ डी ई और एफ डी सी, तो अगर आपने सॉल्व किया तो ये आपको ये इक्वेशन मिलेगा, दैट इज एफ डी ई माइनस एफ डी बी इज इक्वल टू 62.28 किलो न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट समेशन एफ वाई पे आ जाओ। व्हेन यू टेक समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ऑल द वाई कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स -27 लिख दिया। देन इसका माइनस एफ डी बी साइन 60 इधर लिख दिया, इसका माइनस एफ डी ई साइन 60 इधर लिख दिया, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, मैंने इसको दोनों को राइट हैंड साइड पे लेके आया, 27 उधर एल एच एस पे रखा, साइन 60 कॉमन लिया, तो एफ बी डी प्लस एफ डी आया। देन यू डू बेसिक कैलकुलेशंस, तो यू विल गेट वन मोर इक्वेशन, दैट इज एफ बी डी प्लस एफ डी इज इक्वल टू -31.17, करेक्ट है। सो देर इज वन इक्वेशन हियर in terms of FDE minus FDB. There is one more equations here, FBD plus FDE. If you solve that equation, you will get the value of FDE, that is 15.6 kilonewton, and FBD -46.76 kilonewton, ठीक है। दोनों अननोन फोर्सेस का वैल्यूज मिल गया। नेक्स्ट यू गो विद द जॉइंट बी, सो जॉइंट बी लिया, जॉइंट बी में ऑलरेडी आपको FBD पता है, वी भी पता है, देर इज़ ओनली अननोन इज एफ बी सी, सॉरी ई, तो यू अप्लाई समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिंस जो अननोन है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, तो एफ आई का ज़रूरत ही नहीं लगेगा। यू अप्लाई समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स कंपोनेंट इज इसका एफ बी डी का, एफ बी डी का एक्स कंपोनेंट इज एफ बी डी माइनस एफ बी डी कॉस 60, ये वाला माइनस एफ बी डी कॉस 60, एंड ये माइनस एफ बी ई लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, ठीक है। सो यू नो एफ बी डी वैल्यू, ओनली अननोन इज एफ बी ई, यू विल गेट दैट एफ बी ई वैल्यू, दैट इज 23.4 किलो न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज यू सॉल्व, यू फाउंड आउट द ऑल द फोर्सेस इन द मेंबर्स। नाउ फाइनल स्टेप इज टैबुलेशन। सो टैबुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए 1 मार्क्स या 2 मार्क्स रहता है, ठीक है। सो नाउ see you keep an eye individually force AC, ठीक है। AC का क्या है, AC is -41.5 किलो न्यूटन, करेक्ट है। सो दैट मीन्स इट इज़ माइनस में आ रहा है, तो इट मीन्स यू कैन से फोर्स AC -41.57 है, तो मैं मैग्नीट्यूड लिखूँगा
सो दैट इज़ 41.57 माइनस है इसलिए कंप्रेशन. तो सिमिलरली यू डू फॉर all the members AC, AE, BD, BE, CD, CE and DE. You show tabulate it कि what's its magnitude, similarly what's its compression या tension, that is nature of the force. ठीक है. So this is your second problem on method of joints. ठीक है. आज एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ. कल आई विल ब्रिंग वन मोर प्रॉब्लम फॉर मेथड ऑफ जॉइंट्स ओनली. ठीक है. आफ्टर दैट वन विल मूव ऑन टू द मेथड ऑफ सेक्शन. ठीक है. जो असाइनमेंट में जो यूनिट नंबर 4 के ऊपर दिया है, सो इट इज़ टोटल यूनिट नंबर 4 का है. सो दैट मीन्स यू ऑब्वियसली यू डोंट गो फॉर असाइनमेंट 4 लिखना स्टार्ट मत करो. पहले असाइनमेंट नंबर 3 थर्ड यूनिट के ऊपर जो असाइनमेंट है ना वो कर दो, क्योंकि उसका सिलेबस मैंने ख़त्म किया है. इसका तो अभी फर्स्ट टॉपिक चल रहा है. इसके बाद मेथड ऑफ सेक्शन है, इसके बाद एनालिसिस ऑफ केबल्स है, इसके बाद एनालिसिस ऑफ फ्रेम्स है. तो इट इज़ अ ह्यूज चैप्टर. तो ये सब होने के बाद उस पर बैठो. नहीं तो असाइनमेंट के अंदर जो भी ट्रस के ऊपर उसमें भी मेथड ऑफ जॉइंट्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो. ठीक है. सो दिस वीडियो इज़ ओनली मेथड ऑफ जॉइंट्स के ऊपर हेल्प करेगा आपको. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. टुमारो विल सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल. चलो बाय, टेक केयर.